हम जय सच्चिदानंद। हरे हो जी दादाजी, हरे हो जी दादाजी, તમારા વિના ક્યાંય ખૂટતું નથી, તમારા વિના ક્યાંય ખૂટતું નથી। हरे हो जी प्यारा जी, हरे हो जी प्यारा जी, सहारा विना बीज उगતું નથી, सहारा विना बीज उगતું નથી। जगत कुसंगे जदु, जगत कुसंगे जदु, केवल सत्संगे जसु, केवल सत्संगे जसु। दादाजी नो हसतो मुख, दादाजी नो हसतो मुख, शमने दर्शन था सुख, शमने दर्शन था सुख। हीरा मोती महाराजी, हीरा मोती महाराजी, समृद्ध सतिया विना दलडू ठरતું નથી, સમૃદ્ધ સતિયા વિના ડલડું ઠરતું નથી। હારે હું જી દાદાજી, હારે હો જી દાદાજી, તમારા વિના ક્યાંય ખૂટતું નથી, તમારા વિના ક્યાંય ખૂટતું નથી। દુનિયાભરમાં લોકો લાગે, દુનિયાભરમાં લોકો લાગે, સત્સંગ વિના સૂનો લાગે, સત્સંગ વિના સૂનો લાગે। फिर वो दिवस रात जागे, फिर वो दिवस रात जागे, ज्ञानी भवनी भावट वांगे, ज्ञानी भवनी भावट वांगे। रोको अतिक्रमणा जी, रोको अतिक्रमणा जी, आत्म रमना वीना दलडू, आत्म रमना वीना क्याय रुचતું નથી, आत्म रमना वीना क्याय रुचતું નથી। हारे हो जी प्यारा जी, हरे हो जी प्यारा जी, તમારા વિના ક્યાંય ખૂટતું નથી, તમારા વિના ક્યાંય ખૂટતું નથી। જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। થોડો જય સચ્ચિદાનંદ। હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મામાં કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના દુભાય ન દુભાવાય કે દુભાવક પ્રતિ ન અનુભવાય એવી પરમ શક્તિ આપો। મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના દુભાય એવી શ્યાદવાદ વાણી, શ્યાદવાદ વર્તન અને શ્યાદવાદ વલન કરવાની પરમ શક્તિ આપો। પછી અમદાવાદ। હા, જય સચ્ચિદાનંદ। હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય
એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાવાય એવી શાદ્વાદ વાણી, શાદ્વાદ વર્તન અને શાદ્વાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. Yeah. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેધારી ઉપદેશક, સાધુ સાધ્વી કે આચાર્યનો અમણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. Vinay. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ કિંચિત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ન किया जाए, न करवाया जाए કે કર્તા કે પ્રતિના અનુદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. Toral. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા સાથે ક્યારેય પણ કઠોર ભાષા, તંત્રીની ભાષા ન બોલાવાય કે બોલવાથી પ્રતિને અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. તે કઠોર ભાષા, તંત્રીની ભાષા બોલે તો મને મધુર રુચિ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. Vinay. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ સ્ત્રી પુરુષના અનુશબ્દ ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાસ સંબંધી દોષો, इच्छाओं, चेष्टाओं या विचार संबंधी दोषों न किया जाए, न करवाया जाए के कर्ता के प्रति न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो. हे दादा भगवान, મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. ખુશી અમદાવાદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં લુબ્ધપણું ન કરાય એવી શક્તિ આપો. સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. શ્રેયા. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ વગર પરોક્ષ, જીવન તથા મૃત્યુ પામેલાનો કોઈનો કિંચિત માત્ર પણ અવણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરાવાય કે કર્તા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. ટોરલ. હે દાદા ભગવાન, મને જગત કલ્યાણ કરવાની નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. ओके. शुद्धात्मा प्रति प्रार्थना किसको आती है? विनय. જય સચ્ચિદાનંદ. હે અંતર્યામી પરમાત્મા, આપ દરેક જીવ માત્રમાં વિરાજમાન છો, એમ જ મારામાં પણ વિરાજેલા છો. આપનો સ્વરૂપ તે જ મારો સ્વરૂપ છે. મારો સ્વરૂપ શુદ્ધ આત્મા છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હું આપને અભેદ ભાવથી અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. અજ્ઞાનતાએ કરીને મારાથી જે કઈ પણ દોષો થયા છે તે સર્વ દોષોને આપની સમક્ષ જાહેર કરું છું. તેનો હૃદયપૂર્વક હું પસ્તાવો કરું છું અને આપની પાસે ક્ષમા માંગુ છું. હે પ્રભુ, મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો. फिर से दोष क्यारे पण न करूं एवो दृढ़ निश्चय करूं છું. आप મને शक्ति आपो, शक्ति आपो, शक्ति आपो. हे शुद्धात्मा भगवान, आप एवी कृपा करो कि हमें भेदभाव चुकी जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त થાય. हमें તમારામાં અભેદ સ્વરૂપ એકતા में आकार रहे. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. दीपिकानंद जी. जय सच्चिदानंद. नमो वितरागाय, नमो ગાય नमो अरिहंताणम, હરિહંતાણમ, नमो शुद्धाणम, नमो નમો સિદ્ધાણમ, नमो आयरियाणम, नमो આયરિયાણમ, नमो वत्सायाणम, નમો વજ્જાયાણમ, नमो लोये सवसाहुणम, નમો લોવે સૌવસાહુણમ, ऐसो पंचन मुक्कारो, પારો सव पावपणसणो, સવપાવપણાસણો, मंगलाणम च सव्वेशं, મંગલાણમ ચ સૌવે
परमां हवाई मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। विनायक जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसम से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया कायु और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संगत लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। दक्ष जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं संकल्प लेता हूँ। आप ऐसी कृपा करना कि जिससे मेरे दर्शन रूप के आवरण टूट जाए और मैं पढ़ाई सही ढंग से करूँ, ऐसी शक्ति दीजिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और तोरल हे दादा हे दादा दादा भगवान, हमें आपके बच्चे हम हैं आपके दिल के हैं सच्चे, दिल सच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे। दक्ष जय सच्चिदानंद। हे श्री रत्न दादा भगवान, आपला को दक्ष लगे। हे श्री रत्न दादा भगवान, आप परमानेंट तो दक्ष टेम्पररी है। हे श्री रत्न दादा भगवान, आप रियल और एक्सक्लूसिव है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दर्शन જય સચ્ચિદાનંદ। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, દર્શન જુદો છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, દર્શન રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, દર્શન ટેમ્પરરી છે। જય સચ્ચિદાનંદ। जय सच्चिदानंद। श्रेया हेल्थ गुजराती जय सच्चिदानंद। स्वस्थ शरीर આપણને શારીરિક, માનસિક, મનોવૈજ્ઞાનિક, બૌદ્ધિક, ભાવનાત્મક તેમજ આધ્યાત્મિક રીતે મજબૂત બનાવે છે। હે દાદા ભગવાન, મને આ બાબતે શક્તિ આપો। विनायक स्वस्थ शरीर हमें शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। हे दादा भगवान, मुझे इस संबंध में शक्ति दें। खुशी अहमदाबाद अभ्यास हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। અભ્યાસમાં અભ્યાસમાં સખત મહેનત અને નિષ્ઠાપૂર્વક શ્રેયા હેલ્થ મહેનત, પ્રામાણિકતા અને નૈતિકતા ઉત્તમ ગુણ આપશે। મારા લક્ષ્યો સફળતા અને સુખ પ્રાપ્ત કરાવશે। હે દાદા ભગવાન, મને આ બાબતે શક્તિ આપો। कड़ी मेहनत, ईमानदारी और नैतिकता से अज्ञान करने से
उत्कृष्ट गुण देगी, अपने लक्ष्य को सफलता और खुशी को प्राप्त करवाएगी। हे दादा भगवान, मुझे इस संबंध में शक्ति दें। सत्साधन श्रेया। Oh wait, खुशी अहमदाबाद को आती है, बोलो। હા, જય સચ્ચિદાનંદ. દરરોજ અને નિષ્ઠાપૂર્વક બધા જ સત્સાધનો કરવાથી મારું મન મજબૂત થશે. મારું ચિત્ત એકાગ્ર થઈ મારા 3 ધ્યેયો સિદ્ધ કરાવશે. મારી શક્તિ વધારશે, મારું જ્ઞાન વધારશે, મારો વ્યવહાર સુધારશે. દાદા ભગવાનના આશીર્વાદ મળશે અને તેમના જગત કલ્યાણમાં નિમિત્ત બનાવશે. હે દાદા ભગવાન, મને આ બાબતે શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. Good. Chennai. जय सच्चिदानंद। नित्य और ईमानदारी से सभी सत्साधन करने से मेरा मन मजबूत होगा, मेरा चित्त केंद्रित रहकर मेरे 3 लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम होगा, मेरी ऊर्जा बढ़ेगी, मेरा ज्ञान बढ़ेगा, मेरा व्यवहार सुधार होगा, दादा भगवान से आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनके जगत कल्याण में निमित्त बनूंगी। हे दादा भगवान, मुझे इस संबंध में शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Okay, very good. तो बच्चों लोग, क्वेश्चन है आपको सबको कि अपना लाइफ का व्हाट इज द गोल ऑफ आवर लाइफ, आपको क्या बनने का है, इसको मालूम है? लक्ष्य? मुझे आईपीएस बनना नहीं नहीं नहीं, आपको कौन सा, नहीं वो नहीं बताने का, कौन सा आपको मेन गोल क्या है आपका बनने का, इसको मालूम है? खुशी चिनाय। दादा के जैसे बनने का। क्या बोला आपने? दादा के जैसे बनने का। वेरी गुड, गुड आंसर। ओके, तो दादा की जैसे बनने का उसका टूल्स क्या दिया है आपका पुत्रों ने आपको? सत्साधन और प्रेयर्स। क्या बोला? सत्साधन और प्रेयर्स। सत्साधन एक 3 है। प्रेयर्स। क्या बोला? Prayers. नहीं, प्रार्थना प्रार्थना नो, और सब साधन आ जाते हैं। 3 गोल्स क्या है आपका? સ્ટડી, દાદા જ્ઞાન. ये तीनों गोल में से एक में गुलटी मारेगा तो क्या होगा? दादा की जैसा बन सकता है? नहीं। तो सब किसको दादा जी जैसा नहीं बनने का है? सबको बनने का है। हाँ। तो उसमें क्या, वो बनने के लिए क्या गोल दिया है आपके पुत्रों ने? हर रोज सत्साधन करने का। 3 गोल क्या है वो बात की है। हेल्थ, स्टडी और दादा ज्ञान। थैंक यू। अभी सबको मालूम पड़ गया ये? हाँ। तो हेल्थ, स्टडी, सत्साधन में आप क्या करेंगे तो दादा की जैसा बन सकते हैं? उसको सिंसियरली करे तो। क्या बोले तोरो? सिंसियरली फॉलो करना। सिंसियरली करे। सिंसियरिटी और परफेक्ट करे। परफेक्शन, सिंसियरिटी में आ जाता है ना। एंड लक्ष्य? मॉरलिटी। ओह वंडरफुल, दैट्स वन। ओके, सो आपको क्या बनने का आपको? हाँ बोलो बोलो, सिंसियर, मॉरल और प्योर। आपको क्या बनने का है? सिंसियर क्या बोलते हैं, समझना नहीं आता। सिंसियर एंड मॉरल। सिंसियर एंड मॉरल। नहीं नहीं, आपको क्या बनने का है, मेन क्या बनने का है?
दादा की जैसा। दादा भगवान जैसा। थैंक यू। और उसने कितना गोल्स कितना दिया है वो बनने के लिए? 3। इनमें से आपको क्या करना का है तीनों के लिए? तीनों को सिंसियरली फॉलो करना है। सिंसियर एंड मॉरल। ओके, सब अभी सबको मालूम हो गया अभी गोल क्या है सबका? सिंसियर और मोरालिटी। तो सिंसियर और मोरालिटी, सिंसियर की बात, आप तीनों गोल में सिंसियर रहते हैं कि नहीं रहते? यस और नो? यस वाला सब हाथ ऊंचे करो। तीनों गोल में सिंसियर रहते हैं? ओके, खुशी एंड दक्ष एंड गौरव। आज कितना सत्संग किया खुशी? आज पूरा सत्संग किया 25 आउट ऑफ 25। कल कितना किया था? कल मेरा रह गया था 22 आउट ऑफ वो 25। इसको सिंसियरिटी बोलते हैं। हम्म? आपका टाइम, एग्जाम आ रही है, टाइम अच्छी तरह से यूज करते हैं कि ऐसे ऐसे चलता है? वो सिंसियरिटी बोलते हैं। दरअसल आपको कुछ हाँ। नहीं होता है तो टीवी देखते हो, सिंसियरिटी होता है एग्जाम के टाइम पे? नहीं। दर्शना, एक दिन आता है, हाँ। 4 दिन नहीं आते, एक दिन आता है, क्या क्या चल रहा है? मुझे हाई फीवर हो गया। फीवर हो गया तो क्या सत्संग में मना है, दादा ने मना बोलने आने का? नहीं। ईयर में 24 घंटा आप बेड में था? नहीं। कि वो सिंसियरिटी बोलते हैं? नहीं। ओके, तभी एक देखो एग्जाम आ रहा है, और एग्जाम के लिए हेल्थ एंड साधन सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंसियरिटी। ओके, तो अभी ये सोचने का है, देखो बच्चे लोग, अभी नेक्स्ट सत्संग आपका मंडे होगा। ओके, तब तक लिए ये जरा सोचना आपको क्या रियली बनने का है कि नहीं बनने। ओके देवकांत जी? या करेक्ट। अच्छे से सोच लो और उसके लिए आप क्या करना चाहते हो, कैसे उसको फुलफिल करेंगे, अचीव करेंगे, एकम्प्लिश करेंगे, तो वो आप लिख लेना कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा। समझ में आया सबको? ओके, ऑल द बेस्ट। All the best. और लिख के हमको भेजना। हाँ। ओके, कि कुछ अभी कितना दिन है? 3 दिन है ना छुट्टी। खुशी, अहमदाबाद, चेन्नई, आप तो खुश हो गया ना? रिपोर्ट नहीं लिखने का है। 72 आवर्स। कोई डांट ही नहीं देगा, दादा कुछ पूछेगा नहीं, मजा है ना? और दादा सपना में आके हिलाएंगे, बोले क्या कहा है मेरा रिपोर्ट? हाँ खुशी? सपना में आने वाले दादा। ऐसा नहीं है। और रिपोर्ट मांगेंगे। ओके, आपको रिपोर्ट लिखना है कि नहीं लिखना 3 दिन में? आप सोचने का, आपको स्टडी करने का है कि नहीं करने का, और आधा घंटा एक्स्ट्रा मिल जाता है वो सोचने का। ओके, और दूसरा, दादा भगवान ने आप तो को क्या बोला था स्टडी के बारे में, किसको मालूम है? किसके बारे में? स्टडी के बारे में। मोनिका क्या बोला था? इताक्षी क्या बोला था? हाँ। वो स्टार्टिंग में हो आप तो रुक नहीं पढ़ते थे तो दादा ने क्या बोला था? अगर हम पढ़ाई नहीं करते तो दादा भगवान की साइंस भी नहीं समझ पाएंगे। नो,
Oh, it's partial rewrite, correct answer. Laksh, दादा ने ये बोला था कि हमें कि हम हम दादा भगवान नहीं वो जैसे तो स्टडी के बारे में, सॉरी। दादा ने सबको बोला था आपका पुत्र जो स्टार्टिंग में सिर्फ दादा के पीछे घूमते रहता था, स्टडीज में ध्यान नहीं देता। ओके, खुशी। हाँ, जब सत्संग स्टार्ट हुआ तब दादा भगवान सब आप्तपुत्र सत्संग में जाते थे, तो दादा भगवान सब आप्तपुत्र को पूछते थे कि आपने पहले स्टडी किया, तो नहीं वो नहीं नहीं, मना वो करते नहीं, थे। वो क्या बनने का है उसकी बात है कि देखो दादा ने बोला था, ठीक ठाक सी बात। हाँ, अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें दादा का ज्ञान समझ में आ पाएगा। नो 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 नो, ये तो सब आपकी सॉल्यूशन। दादाजी ने बोला था कि everybody must go to the college and graduate. Okay, तो अभी खुशी चिनाय आपको दादा की जैसे बनने का, तो आपका एम क्या होना मांगता है? You must go to college and graduate. दादा ने क्यों बोला था? अभी केशव दादा बोलेगा आपको कि उसका महत्व क्या है। ओके, तो सबको अभी ये सोचने का ही करने का। ओके केशव दादा, आपने सब सुना, अभी बातें करो। जय सच्चिदानंद। दादाजी हम जब बहुत नए नए आए थे, छोटे थे, स्टडी करते थे, मुझे याद है जब मैं तो अभी 10th पास करके एसएससी में जा रहा था, उसी टाइम पे मुझे दादा भगवान मिले। तो उस समय तो स्टडी, हमारे मम्मी पापा तो स्टडी को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, तो स्टडी के सिवाय कि जब तक आप ग्रेजुएट नहीं बनोगे तो हमको छोड़ते नहीं थे। पर ऐसे ही टाइम में फिर दादा भगवान भी ऐसे मिले। मम्मी पापा तो हमेशा बोलते हैं, चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे सब ग्रेजुएट बने, और नहीं पढ़ने का शौक हो तो पकड़ के मार के भी पढ़ाते थे। पर दादा भगवान की थियोरी और साइंस अलग थी, वो फोर्सली नहीं, वो प्रेम स्वरूप थे, तो प्रेम से समझाते थे कि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपकी क्या दशा होगी, अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो आप अपने मुकाम पे नहीं पहुंच पाओगे, अपनी एम पे नहीं पहुंच पाओगे। इवन यहाँ तक कि अगर हम आके दादा भगवान के आस बैठ जाते थे आखा दिन सेवा में ऐसे, तो दादा ऑब्जर्व करते थे कि आखा दिन आते ही पहले पूछते थे कि आज आपने क्या किया, पूरा कोर्स पढ़ा, स्कूल गए थे, ये गए थे, तो सब पूछते थे। तो हम बोलते नहीं दादा आज तो मैं नहीं गया था, क्योंकि आज मुझे ऐसा था कि मैं सत्संग अटेंड करूं। तो दादा बोला ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, अगर आप स्टडी पूरी नहीं करेंगे तो मैं आपको इधर सत्संग में भी नहीं आने दूंगा। तो फिर हमको लगा ये दादा क्या बोले कि सत्संग में भी नहीं आने देंगे। तो फिर तो हम तो दादाजी के पास जाते थे, तो जैसे ही दादाजी आराम करते थे तो बुक खोल के बैठ जाते थे दादाजी के रूम में। फिर हमको पता चला कि भाई दादाजी जिस चीज के लिए सिंसियर है, जिस चीज की वजह से उनको पता है कि ये नॉलेज क्या काम करता है, एक व्यवहार ज्ञान है और एक निश्चय ज्ञान है। व्यवहार में हमको स्टडी सब करना पड़ेगा, तो हम अपने मुकाम पे पहुंचेंगे, तब हमको कोई जॉब मिलेगा, हम कोई डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, और वो बनेंगे तभी जाके हमको व्यवहार में पैसे कमाने के लायक बनेंगे। व्यवहार के लिए पैसे तो चाहिए ना। आज तो हमको मम्मी पापा सब पढ़ाते हैं, वो हमारी फीस भरते, जब हम बड़े हो जाएंगे तो तब तो भी हमारे मम्मी पापा को फीस भरनी पड़ेगी हमारा सब चीज के लिए। तो अमेरिका में तो ऐसा बोलते कि जैसे ही 16 साल का बच्चा तैयार हो जाता है, स्टडी करता है, उनको भेज देते, जाओ लिव योर ओन लाइफ, खुद पैसे कमाओ और फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आओगे। तो वो क्यों होता है कि अगर हम स्टडी पूरी करेंगे, पढ़ाई पूरी करेंगे, तो हम किसी ग्रेजुएशन पूरी करेंगे तो हम किसी सब्जेक्ट के अंदर मास्टर बनेंगे। कोई आर्किटेक्ट बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो अपनी जो जो फील्ड में आप स्टडी करोगे तो उसका मास्टर बनोगे। जब मास्टर बनोगे तो डिग्री मिलेगी तो आपको सब जिस प्रोफेशन में आप बढ़ना चाहते हैं तो उस समय आपको सब वेलकम करेंगे। जॉब मिलेगी, आपको अपना बिजनेस शुरू होगा, आप अपने मुकाम पे खड़े हो गए, तो फिर आपका लाइफ व्यवहार का अच्छा हो गया। तो जब व्यवहार ओके हो गया, आप अपने परिवार की देखभाल कर सकेंगे, सबकी देखभाल कर सकेंगे, व्यवहार अच्छा हो गया,
उसके बाद निश्चय शुरू होगा, फिर दादा का विज्ञान शुरू होगा, दादा की समझ शुरू होगी। तो दादा की साइंस क्या है? व्यवहार के साथ साथ ये दादा का ज्ञान चाहिए। व्यवहार के साथ, व्यवहार में आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, आर्किटेक्ट बन गए, उसके साथ फिर दादा की समझ चाहिए कि मेरे लाइफ का एम क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। तो इस व्यवहार के साथ हम अपने आत्मा को, दादा भगवान को प्राप्त कर सके, दादा भगवान की तरह जी सके, दादा भगवान की समझ प्राप्त कर सके और हम अपने जीवन में ला सके और हम अपने मोक्ष मार्ग पे चले, दादा भगवान की तरह जी सके और दादा भगवान जैसे बने। तो ये व्यवहार में स्टडी, डिग्री और ये निश्चय में दादा भगवान दोनों को साथ रखेंगे, तभी हम लाइफ में परफेक्शनिस्ट बने, सक्सेस बने और हम अपने दादा के कहने के मुताबिक चले। क्योंकि दादा भगवान किसी भी हालत में व्यवहार में जो बरोबर नहीं हो तो वो दादा बोलते थे, वो निश्चय में दादा भगवान के ज्ञान में वो कभी भी पक्का नहीं हो सकता है। जो व्यवहार में परफेक्ट बनोगे तो ही दादा भगवान के साथ आप परफेक्शनिस्ट बन सके। उनके बात का आपने, दादा भगवान की बातों को आपने सम्मान दिया, उनकी समझ को प्राप्त किया, तभी दादा भगवान का हम सबके ऊपर आशीर्वाद होगा, हमारे पे राजीपा होगा। तो दादा के जो भी दादा को फॉलो करते थे और दादा भगवान के कहने के मुताबिक चलते थे, उनके ऊपर दादा की खूब आशीर्वाद रहती थी, बहुत आशीर्वाद रहती थी दादाजी। तो हमको अगर दादाजी के आशीर्वाद को प्राप्त करना है, दादा की कृपा को प्राप्त करना है, तो हमको हमेशा दादा के व्यू पॉइंट से चलने का, कि दादा के आशय में क्या था, हम बच्चे लोग कैसे जीना चाहिए, हम सबको क्या करना चाहिए, जो दादा ने हमको सबको सिखाया वो उसके आशय मुजब चले, तो फिर दादा के 4 हाथ हमारे पर रहेंगे, दादा की खूब आशीर्वाद रहेगी। और हमको अगर दादा भगवान की आशीर्वाद मिल गई तो हमारा जो निश्चय है, जो हमारी सिंसियरिटी है, हमारी जो मोरलिटी है, उसमें हमको बहुत इनहेंसमेंट मिलेगा, हमको बहुत प्रोग्रेस होने का फास्ट होगा। आपकी मेहनत होगी और साथ में दादा भगवान की आशीर्वाद होगी, दोनों चीज साथ में होगी, तो आप अपने मुकाम पे हड़हड़ाहट फास्ट पहुंच जाएंगे। तो हमेशा लक्ष्य में ये रखने का, मुझे अगर सिंसियर दादा भगवान जैसा बनना है तो मुझे खूब पुरुषार्थ करना पड़ेगा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी और हमारे को उसमें निश्चय में आगे बढ़ने के लिए हमारी मेहनत के साथ दादा भगवान की खूब आशीर्वाद भी चाहिए। तो दोनों चीज मिलती है, इसलिए उसमें हिंदी में कहा जाता है कि दवा के साथ दुआ भी चाहिए। कोई इंसान बीमार होता है ना, तो ऐसी कहावत बनाई है कि क्यों ऐसी बनाई है, दवा तो मिलेगी, दवा से तबीयत बन सकती है, पर दुआ से और भी फास्ट रिकवरी हो सकती है और जल्दी आप उस तकलीफ में से पार पहुंच सकते हैं। तो हमारे पास दवा है, मेहनत करने के लिए हमारे पास दवा है, पुरुषार्थ करने के लिए दवा है और साथ में दुआ भी चाहिए दादा भगवान की। और वो दोनों चीजें मिल गई तो फिर आपका एम पूरा हो जाएगा, आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। बरोबर है? हाँ। सबने हाँ नहीं बोला? तो खुशी, चेन्नई क्या बोला? यशोदा राम तो सब भूल गया क्या बोला। जैसे यशोदा राम, आप हमको एजुकेट करो। तो हमें दादा के जैसे बनना है तो हमें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हमें दादा के जैसे भी बनना है और लाइफ का जो एम है उसमें भी बहुत फोकस करना है और व्यवहार में भी हमें परफेक्ट समझना, परफेक्ट होना है, तो ही हमें ज्ञान, दादा का ज्ञान अच्छे से समझ आएगा। दादा के व्यू पॉइंट से हम चलेंगे तो हमारा गोल अचीव होगा। जय सच्चिदानंद। इसको ऐड करने का है। दर्शन आपने क्या लिखा? आज खुशहाल को आज बुखार आ गया। वो साइड में उसको उसकी तबीयत ठीक नहीं। रिपोर्ट नहीं भेजा इसलिए इसको ऐड करने का है अपने नोट में से प्रश्न। हाँ, अगर हम व्यवहार में परफेक्ट होंगे तो हमें दादा का आशीर्वाद मिलेगा। ओके, यस अब है आपका नोट, जरा शांति से पढ़ना देखना, क्योंकि you need lot of discipline to become like
ओ कैसे होता था सिंसियरिटी मोरालिटी में डिसिप्लिन आ जाता है? हाँ, उसके अंदर तो खास पड़ा हुआ है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन कैसा कि मैंने दादाजी के साथ रहते थे तो हमने कभी दादाजी को डिसिप्लिन में से बाहर नहीं देखा। अगर वो सुबह को 5 बजे उठ जाते थे तो मुझे ऐसा दिन पता नहीं कि दादा उस समय वो 5 बजे नहीं उठे हो। ऐसा एकदम झटका मार के उठ जाते थे। फिर पूछते थे केशव क्या टाइम हुआ है, मैं पूछता था दादा 5 बजे। तो कितनी बार दादा उठते ही पहले ही पूछते थे 5 वागी गया छे? हाँ दादा 5 થઈ ગયા છે। तो उसको बोलते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी जो टाइम पे आप जो कुछ करते हो उसी टाइम पे रेगुलर वो होना चाहिए। एक दिन 8 बजे उठने का, 1 बजे 9 बजे उठने का, फिर कभी 5 बजे उठने का, वो डिसिप्लिन नहीं है। इवन स्टडी में भी आज मुझे 2 घंटा स्टडी करना है तो 2 घंटा वो टाइम फिट किया तो वो डिसिप्लिन होना ही चाहिए। फिर उस दिन ऐसा नहीं होना आज चलो आज का दिन हम नहीं स्टडी करते, आज खेलने जाते हैं, तो वो डिसिप्लिन नहीं है। यानी सिंसियरिटी में वो डिसिप्लिन का तो जो वो है वो डेप्थ ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ख्याल है? हाँ। खाने में डिसिप्लिन, खाने में कितना खाना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा हम खा जाएंगे, टेस्टी और खाना मिल गया बहुत अच्छा तो हमने ज्यादा खा लिया तो फिर ऐसा झोंके खाएंगे तो पढ़ाई कैसे करेंगे? तो खाने में भी डिसिप्लिन, बात करते समय भी डिसिप्लिन। वाणी ऐसी निकलनी चाहिए कि किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए, अपने भाई बहन को, मम्मी पापा को। तो वाणी के अंदर भी डिसिप्लिन चाहिए। मतलब दादाजी को हमने ये ऑब्जर्व किया, हर एक चीज में डिसिप्लिन थे, हर एक चीज में। किसी भी जगह पे कोई ऐसा मिस्टेक नहीं निकाल सकता है, किसी की जगह पे ऐसा नहीं बोल सकता है। हम तो ऐसा विचार करते थे कि दादाजी बने कैसे थे कि हम कभी भी दादाजी को किसी भी संजोग में इधर भी उनकी भूल नहीं निकाल सकते थे। हर एक बात में डिसिप्लिन चाहिए। तो ये डिसिप्लिन का अगर ये गुण आ जाए ना तो वो आदमी के ऊपर दादाजी की खूब आशीर्वाद। डिसिप्लिन हम सब आपदा पुत्रों का इतना अच्छा था कि सुबह को अगर हमको 6 बजे पहुंचने का है तो जैसे ही 6 बजे दादा का द्वार खुलता था तो सब आपदा पुत्र अंदर इंटर करते थे। तो दादा भगवान भी बोलते थे देखो वो दादा भगवान अगर कोई किसी दिन 10 दिन एक दिन में नहीं आ सका तो पहले ही सवाल पूछते थे कि वो दिखाई नहीं देता है, दादा उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो दादा जानते थे कि अगर ये आपदा पुत्र जितने भी है अगर उनको कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा तभी तक तो बाकी हर एक संजोग में वो टाइम पे आके पहुंच जाएंगे। इवन रात को भी बस में बैठ के आ जाएंगे, किसी भी संजोग में। उसको डिसिप्लिन बोलता है, उसको सिंसियरिटी बोलते हैं। और डिसिप्लिन में रहते थे तो दादाजी की खूब आशीर्वाद मिलती थी। देखो तो डिसिप्लिन, आपका कुछ डिसिप्लिन है वो जरा सोच के लिखने का। ओके, ये 3 दिन के टाइम मिले तो आर यू डिसिप्लिन पर्सन? श्रेया, यस और नो? No. ओरल? No. चीज ये पुणे वाले तो नहीं है। क्यों सोचना पड़ता है इतना? केशव दादा बोला दरअसल नो। खुशी अहमदाबाद नो। ओके, सो ये चिनाई नो। तो ये जरा सोचने का कि व्हाट इज दैट कि वो आपको डिसिप्लिन में नहीं रहने देते। तो दादा तो दैट मींस जो गोल दादा के जैसे बनने का है ही नहीं ना, यू नो। तो मेन गोल या ओके साक्षी बा। हाँ, मैं हर स्टडी में डिसिप्लिन हूँ, सिर्फ दादा के ज्ञान में डिसिप्लिन। नो जरा सोचना। ओके, इट्स इजी टू से है। ओके, सुबह उठ तो नहीं पाते थे में कैसे हो सकता? कल ही बात हुआ था। वो जब नो आप भी कुछ भी जस्टिफाई कर सकते हो। ओके, जस्टिफाई डजंट मीन यू आर करेक्ट ना। वो सोचने की बात है। आपको महात्मा है,
ओके, जरा सोचो, खुद के लिए ऐसे मत बोलो कि हम डिसिप्लिन में, कितना डिसिप्लिन में देखो एवरी डे। यशोदा क्या बोला, दादा परफेक्टली एक टाइम एवरी डे उठ जाते, अब उठते हैं, हाउ कैन यू से डिसिप्लिन? ओके, ये जरा सोचो और बाद में मंडे मिलेंगे। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी तो मजा करने का मजा करो, स्टडी करने का स्टडी करो, हेल्थ में अच्छा खाने का अच्छा करो खाने का, और सत्साधन नहीं करने का करना का। और आप यू वो क्या बोलता है कुछ भी, सब क्या बोलता है दादा, यू आर, कौन फिनिश करेंगे सेंटेंस? खुशी अहमदाबाद, You are responsible on yourself. only and solely. Only and solely. श्रेया, ओके, होली एंड सोली का मीनिंग किसको मालूम है? हमें खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल है। होली मीन्स क्या होता है मोनिका? हम हाँ? हम खुद के लिए, हम हमारे खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या होली का मीनिंग ही बोलता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होली? होली श्रेया, साक्षीबा, हम पूरे के पूरे हमारे पे रिस्पॉन्सिबल है और पक्के होली मीन्स कंप्लीट एंड Complete. सोली मीन्स पूरे रिस्पॉन्सिबल है, कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल हम पे ही है। सोली मीन्स क्या बोलो? यू आर पार्शियली राइट साक्षीबा, यू टू ऐड समथिंग। हाँ? सोली मीन्स क्या? entirely. यानी कि पक्के। हाँ, सब Entirely. या वो ठीक है, पर कौन? हम हमें हम हाँ, सोली का मीनिंग है यू आर, हम खुद। हम खुद, पापा मम्मी नहीं। ओके, आप देखिए कि सोचो पापा मम्मी से कितना डिपेंड होता है, उठ भी नहीं पा सकते। ओके, सो ये जस्ट spend some time to talk, think. Okay, जय सच्चिदानंद। जैसे हाँ।